Hello students, our new chapter, Modern Periodic Table, chapter number 7. Okay, in Modern Periodic Table, what we have studied there are different types of blocks, elements, as well as period, groups, electronegativity, electron ionization. These things are we are studied in this chapter. So, in 19th century, 30 elements are known, okay, and they are classified on the basis of physical property as a metal, non-metal, and metal. Okay. Now, after that, one scientist said in 1869, Russian chemist Mendeleev, all of you know the Mendeleev's periodic table, okay, put, put forth the periodic table of 63 elements known as the known at that time. Only 63 elements उस time पता थे. According to that, Mendeleev ने अपना खुद का fourth periodic table describe किया using the atomic mass and the properties of the element. The Mendeleev's periodic table based on the Mendeleev's law. Then what is the Mendeleev's law? Mendeleev's law says that the physical and chemical properties of the element are the periodic function of their atomic masses. That is, physical and chemical property depends on the atomic mass. Then our first point is structure of modern periodic table. Structure of modern periodic table. In that, over a long period of time, many scientists have come up with different form of periodic table. We are already know that about two scientists in 19th century. One scientist described 30 elements in 1869. Mendeleev described 63 elements. So over a long period of a time, many scientists have come up with a different form of periodic table. However, they however, this is called as a long form of periodic table or a modern periodic table that we are studying now, which is received version of Mendeleev's periodic table is the most convenient and widely used form of an periodic table of the element today. The modern periodic table has some. This is our modern periodic table. Here some periods is there, some blocks is here. So we have studied different types of element in periodic table, how they are classified, how some properties of that elements. Okay, then next, here in our periodic table, 7 horizontal row called as period. Then which is 7 horizontal rows? This is 7 horizontal rows here. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7. These are the periods. Then 18 vertical columns are called as group. That is 1 to 18. Then where is vertical column? 1 to 8 here. Here is 1, 2, 3, 4, so on up to 18. These are the vertical columns and these are the period. 1 to 7 horizontal. These are periods, and 1 to 18, 1 to 18 vertical column are called as group. Then in this periodic table, 118 boxes to accommodate 118 element in the modern periodic table. यहाँ पे हमारे पास है 118 boxes and 118 element are in our modern periodic table. So all of you understand what is the period. Period is horizontal and vertical column पे हमारे पास है 1 to 18. These are
vertical column, these are the groups. 1 to 18, these are a group. 1 to 7 are the periods. 1 to 7 are the periods, and 18 vertical columns, 1 to 18, are known as groups, and 118 elements in our modern periodic table. So after a series of revision, the early periodic table has evolved into what it is now. In modern periodic table, the elements are arranged horizontally. Okay, all the elements are in our periodic table are arranged horizontally. आप देखो ना, वन हमारा हाइड्रोजन का जो हमारा हाइड्रोजन देखो, उसके बाद डायरेक्टली हमारा हेलियम है, वहां पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो हीलियम का डायरेक्टली कौन सा एटॉमिक नंबर है 2। वैसे ही लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देखो वहां पे देखो हॉरिजॉन्टली वहां पे हमने अरेंज किया है। ओके, देन ईच एलिमेंट आइडेंटिफाइड बाय द सिंबल्स placed in the middle of square. All of you know the symbols, atomic mass, atomic mass, ठीक है, then atomic number, atomic mass are included. Then the groups क्या है, groups are also known as families. Group is also known as families, and 18 vertical columns in the periodic table. जो हमारे 18 वर्टिकल कॉलम्स है वो है हमारे ग्रुप्स। तो उस ग्रुप को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, एस पी डी एफ, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने वाले हैं। The elements have a similar chemical properties due to the similar number of electron in their outermost shell. क्यों similar properties है? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या है, आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे देखो, द एलिमेंट्स हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ व्हाट, द सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट शेल में सिमिलर है। ठीक है, वहां पे दो कैटेगरी की है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। Group A is representative element and Group B is transition metals. यहाँ पे देखो, आपको देखो some horizontal vertical columns यहाँ पे दिखाए गए, किसको क्या बोलते हैं, 8A। Then next Group A में क्या है, Group A में है हमारे पास अल्कली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, याद रखना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। मतलब 1A में है, यहाँ पे देखो 1A क्यों दिया है आपको इस स्लाइड में पता चलेगा। प्रीवियस स्लाइड देखो, 1A मतलब दिस, ओके, जो हमारा 1A दिया है, दीज आर व्हाट, अल्कली मेटल्स, दीज आर अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट ग्रुप सेकेंड A, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब कौन से है, सेकंड ए कौन सा है, दिस इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। देन नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड थर्ड ए, एल्यूमिनियम ग्रुप्स और बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली कहाँ पे है, बोरॉन फैमिली है हमारी, बोरॉन फैमिली है हमारी थर्ड ए में क्या है, हमारी बोरॉन फैमिली। थर्ड ए किधर है हमारा, दिस इज एन अवर थर्ड ए, दिस इज अवर बोरॉन फैमिली। देन फोर्थ ए में क्या है, कार्बन फैमिली। सिमिलरली नाइट्रोजन फैमिली है हमारे, ऑक्सीजन फैमिली एंड हैलोजन फैमिली। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन फैमिलीज यहाँ पे हमको मिल जाए। ठीक है, इसके लिए ये कॉलम आपको दिया है कि क्योंकि किसमें क्या है देखने के लिए। देन नेक्स्ट है ग्रुप बी, द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या है, फाउंड इन अ बिटवीन सेकंड ए एंड थर्ड ए के बीच में, मतलब वो कौन सा ब्लॉक हो गया हमारा,
डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, और वो कौन सा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, these are the sorry the found between second A and third A and referred as the D blocks element. And the inner transition element, that is lanthanide actinides, are found at the bottom of our periodic table. These are F block elements. We have studied in next slide what is the D, F block, S block elements. Where is it in our periodic table? See here. These are only the first A, second A. These are S block element. Okay. Then third B to 12. Okay. नहीं तो यहाँ पे देखो, थर्ड वर्टिकल कॉलम से हमारा 12 वर्टिकल कॉलम तक क्या है, हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है. देन हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, एंड लास्ट में हमारे पास है F block elements, that is the bottom of our periodic table. These are lanthanide and actinides. Lanthanide and actinide. All of you understand? Our periodic table में क्या क्या है हमारे पास, फिर periods है, groups है, blocks. ठीक है. Then कितने boxes है हमारे पास और कितने elements है, and our modern periodic table is 118 elements in our modern periodic table. So यहाँ पे S block elements है 1 to 7 S block element, then D block element, P block element, as well as हमारे पास है periods है, हमारे पास 7 periods है, then 10 groups, हमारे पास groups है, different types of groups है, A, first A, second A, मैंने आपको क्लासिफाई करके दिया है. क्यों क्लासिफाई हो गया आप सबको कि ग्रुप कैसा बना, ब्लॉक्स कैसे बने, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. देन नेक्स्ट देखो, अल्कली मेटल्स है, यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल है. दीज आर द ट्रांजिशन मेटल्स. पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, यहाँ पे मेटलॉइड्स है, नॉन मेटल्स है. यहाँ पे पूरा जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जैसे दिए हैं वैसे वैसे हमने वहाँ पे क्लासिफाई किया. अल्कलाइन मेटल कौन से, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से, लैंथेनाइड कौन सा है, नॉन मेटल्स कौन से, मेटल्स कौन से हैं, ठीक है, नोबल गैसेस कौन से हैं. All of you understand that we are described here where is alkaline metal, where is transition metal. Then the period is also known as a series. यहाँ पे क्या होते हैं हमारे पास 7 horizontal rows are known as periods. Then period 1 to 2, 1 to 2, period 1 and 2 में क्या है, elements, the electron occupy only one main energy level, that is S sub level. यहाँ पे सब लेवल, यहाँ पे देखो सब लेवल मतलब सब शेल्स है हमारे पास. देन पीस, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्क्राइब किया जाएगा. डी एंड एफ, एफ शेल्स, पी शेल, एस शेल, आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्क्राइब करूंगी. यहाँ पे देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है हमारे पास, लास्ट 2 पीरियड से लैंथेनाइड्स, रेयर अर्थ मेटल है, एंड एक्टिनाइड्स हैविंग हेवी रेयर अर्थ मेटल. देन 4 मेन रीजन क्या है हमारे पीरियोडिक टेबल के, एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप हैविंग सिमिलर लास्ट सब लेवल और सब शेल्स. तो कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना है. Thus, using the electronic configuration of the element, the periodic table can be divided into 4 regions. In which 4 region we are already studied that SPDF. वो SPDF यहाँ कहाँ से पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. आपको 4th चैप्टर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है. देखो यहाँ पे S, P, D and F डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पे दिए. देन एस ब्लॉक में क्या है हमारे पास, एस ब्लॉक में 1A to 2A that is representative element है. देन पी ब्लॉक में 3A to 8A representative elements है. the 1B to 8B transition, and F ब्लॉक में है हमारे inner transition elements. Then configuration of valence electron of representative
एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन सी सब शेल्स में है, यस एंड पी सब शेल्स में है। ओके देखो यहाँ पे मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया, दिस इज एन अबाउ प्रिंसिपल से हम क्या करेंगे, अबाउ प्रिंसिपल है आपको फोर्थ चैप्टर में पढ़ा जाएगा। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। अबाउ इट्स नॉट एन साइंटिस्ट नेम, अबाउ is an German name meaning construction. ओके अफबाउ हमारा किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अफबाउ इज एन जर्मन नेम है, उसका मीनिंग है कंस्ट्रक्शंस। देखो यहाँ पे आपको कुछ 1s, यहाँ पे देखो 1s 2s 2p करके कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स, कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो n दिख रहा है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, ऐसा क्यों दिया है, क्या दिया है। और यहाँ पे देखो l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। ये है हमारा, दिस इज नोन एज अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ डायग्राम। अब डायग्राम में जैसे आपको जब जब आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं सब शेल्स में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है सम एलिमेंट्स का, तो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए एक कंस्ट्रक्शन दिया है। पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे पास होगा, हमारा डायग्राम देखो, यहाँ पे पूरा एरो दिया नहीं, देखो ये है हमारा 1s में फर्स्ट हम इलेक्ट्रॉन 1s के बाद हम जाएंगे 2s, 2s के बाद जाएंगे हम 2p, 2p देन 3s, 3s के बाद जाएंगे 3p 4s। सिमिलरली हम देखो 3d 4s, यहाँ पे एरो मैंने दिखाया है कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं। डायरेक्टली हम 2s में इलेक्ट्रॉन्स नहीं डिस्क्राइब कर सकते, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये क्यों दिया है आपको, कुछ शेल्स है हमारे पास एसपीडीएफ, बाय यूजिंग एसपीडीएफ हमने ब्लॉक्स जो भी ब्लॉक्स है हम डिस्क्राइब किए हैं एसपीडीएफ इन आवर पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 1 2। देखो the energy of the electron in multi-electron atom therefore depends on the principal quantum number, that is n, n हमारे पास 1 है for 1s के लिए। then azimuthal quantum number is l, the lower sum of n plus l for the orbital the lower its energy। जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा सबसे पहले लोअर एनर्जी में ही रहना चाहता है, so always electron goes in lower energy, therefore energy is directly proportional to n plus l। l is known as n is known as principal quantum number and l हमारे पास है अजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस l, यानी जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पहले किधर जाना चाहेगा, जो लोवेस्ट हमारे पास लोवेस्ट एनर्जी है वहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है। ऑल ठीक है, जो भी हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन द इलेक्ट्रॉन goes in first going
in 1s, then 2s, then 2p, 3s, जैसे कंटिन्यू हमारा इलेक्ट्रॉन फील होते जाएंगे। जैसे 1s में फील हो गया तो दूसरे सेल में 2s में जाएगा, उसके बाद 2p में जाएगा, उसके बाद 3s में जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक दिया है n, जब n कैसे फाइंड आउट करें, n प्लस एल यहाँ पे रूल दिया है, l इज इक्वल टू s के लिए हम 0 लेते हैं, n p के लिए 1 लेते हैं, d के लिए 2 लेते हैं, एंड f के लिए 3 लेंगे। देन n प्लस एल फॉर 2s के लिए देखो, देखो क्या आएगा, n कितना है हमारे पास, n हमारे पास है, दिस इज n and this is our s is equal to 0, n कितना है हमारे पास 2, therefore 2। then next n plus l क्या है, n is principal quantum number, l is azimuthal quantum number, s क्या है हमारे पास, अब देखो मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका इधर से स्टार्ट होगा। s इज शार्प, यहाँ पे s में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, मैक्सिमम 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे p में, p सब शेल में, और p शेल्स में कितने जाएंगे हमारे पास, 4 number of electron, d means diffusion, यहाँ पे 10 number of electron, f means fundamental, there is 40 number of electron, कितने s में सिर्फ 2 ही number of electrons फील कर सकते हैं हम, p में यहाँ पे 4 number of electrons फील कर सकते हैं, ठीक है। then d में 10 and f में 40, देखो यहाँ पे subshell, shells and principal quantum number। One is what? One is principal quantum number. S is what? Number of electron in subshell, and raised to power 2 दिखाया था, 2 is an our subshell, that is azimuthal quantum number। S is our azimuthal quantum number and 2 is our number of electron in subshell। उस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो कौन दिखाता है, 1s रेज टू पावर में कितना है, 1s रेज टू पावर में कितना दिख रहा है यहाँ पे 2, मतलब 1s शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स फील किया है, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। then 1 means principal quantum number, s means subshells। then यहाँ पे आपको एक जो मैंने यहाँ पे सी है ना, यहाँ पे मैंने 1s 2s, ये ध्यान में कैसे रहेंगे आप, कैसे आप फील करोगे इलेक्ट्रॉन्स, एक पूरी सीरीज कोई कोई कुछ भूल सकते हैं, यहाँ पे एक मैंने सिंपल ट्रिक आपको दी है, देखो वही है, सिर्फ मैंने यहाँ पे सिंपल जो डायग्राम है वहाँ ये सिंप्लीफाई की है मैंने, और उसको एक शॉर्ट फॉर्म दिया है, देखो SS मतलब स्कूल, देखते हैं PS मतलब पब्लिक स्कूल, then also public school, then next DPS मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल, then F हम ले सकते हैं फाड़ू पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, नेक्स्ट फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ऑल ऑफ अंडरस्टैंड, वो पूरा डायग्राम यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट दिया है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सिर्फ यहाँ पे मैंने नंबरिंग दिया है 1 2, लेकिन 2 3 3 4, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको ये नंबरिंग दिया। पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो जाएगा 1s, देन 2s, देन कहाँ पे जाएगा 2p, देन 3p। तो उसको लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया, स्कूल पहले वाला है स्कूल, देन पब्लिक स्कूल, देन थर्ड है दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंड फोर्थ इज फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर अवर above डायग्राम। कैसे याद रखेंगे और कैसे आप फील करते जाओगे इलेक्ट्रॉन्स को, डायरेक्टली आपको above डायग्राम नहीं याद आया तो आप ये शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट
1s ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं? हम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन में। यहाँ पे आपको कुछ ऑर्बिटल्स, हाँ ये देखो 1s 3p 3d 4 7s, यहाँ पे ऑर्बिट्स दिए। दिस बॉक्स इज आल्सो नोन एज आवर ऑर्बिट्स। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे फील किया जाता है? आपको ये देखो, एक हाफ एडेड एरो में हम इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। कभी कभी क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन कैसे फील कर सकते हैं, वो एक रूल है, आपको 4th चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि कैसे हम फील करते हैं। यहाँ पे इन शॉर्ट में देखो किसको क्या बोलते हैं, ये हमारे शेल्स है और यहाँ पे कुछ ऑर्बिट्स दिए गए हो, हम इसमें इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला है उसमें से ही हम क्या करेंगे, उसमें ही हम सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील करने वाले। इलेक्ट्रॉन फील करने के लिए हम यहाँ पे एक आपको जैसे इलेक्ट्रॉन 1s में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, यहाँ पे 3p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 5d में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं एंड 7f में हम 14 इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं, उसे कम फील कर सकते। किसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ कम बेटा, इस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कम है तो हम कम फील कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 6 10 एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स हम ऑर्बिट्स में फील कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखो सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्बिट feeling of orbital. हाइड्रोजन having एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है 1, तो उसका क्या आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 1s में, तो 1s यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन फील होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। देन हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फील किया हमने। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने फील किया, पहले 1 देन 2 हाफ एडेड 3 है, तो और यहाँ पे एक ब्लैंक रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आवर ऑर्बिट। देन general valence electron configuration and how to write the electronic configuration as per the element we are studied in next lecture. All of you understand today's lecture. पीरियड्स क्या है हमारे पास, पीरियड्स कितने हैं, ब्लॉक्स कितने हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कौन कौन से हैं, एफ ब्लॉक में कौन से लैंथेनाइड एक्टिनाइड, डी ब्लॉक में हमारे पास कौन से ट्रांजिशन मेटल्स है, एज वेल एज ग्रुप्स कैसे बनाए, एज वेल एज उसके बाद हमने क्या देखा, how much elements are described in our periodic table is 118 elements are in our periodic table. यहाँ पे आपको अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल से ग्रुप्स डिस्क्राइब किए हमने 1 to 8A, ठीक है, as come all of you understand today's lecture. We have to find out the electronic configuration, how to write the electronic configuration in next lecture. First we have to study the first above principle. above principle याद रखो, n के लिए कितना वैल्यू लेना है, s के लिए कितना वैल्यू लेना है, वो उसमें पहले स्टडी करो तो आपको। above principle का शॉर्ट फॉर्म, शेल्स कोणते हैं, यहाँ पे देखो सब शेल कोणता है, शेल्स कोणते हैं आणि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोणते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कौन से, ये आप पहले ध्यान में रखो। और उसके पहले अबव प्रिंसिपल इन शॉर्ट फॉर्म, 1s में इलेक्ट्रॉन गया तो उसके बाद 2s में ही जाएगा, डायरेक्टली 2p में नहीं जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, तो अंडरस्टैंड दिस। बात नहीं समझ में तो बार बार देखो, समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर केमिस्ट्री। So this is our end of first lecture. We will study in next lecture how to write the electron configuration of some elements. Thank you.